السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راہ زیست بائی زہرا بنت خالد پارٹ 11۔ وہ آفس سے تھکی ہاری گھر لوٹی تھی۔ یونیورسٹی تو ختم ہو چکی تھی تو اب زیادہ تر وہ آفس میں ہوا کرتی تھی۔ کچھ نئے آئیڈیاز پر کام شروع کر رکھا تھا جس کی وجہ سے مصروفیات بڑھ گئی تھی۔ سارا دن وہ نت نئے تجربات کرتی اور نئے ڈیزائنز کے لیے آئیڈیاز سوچتی تھی۔ اس سب میں توانائی صرف ہو رہی تھی تو اس لیے وہ اب اکثر رات کا کھانا کھا کر کافی کا مگ تھامے اپنے کمرے میں آ جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ گرم کافی کا مگ تھامے بالکنی میں لگے جھولے پر آ بیٹھی تھی اور چاند کو تکنے لگی تھی۔ کل ہونے والی ملاقات کا سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ آج آفس نہیں گئی تھی۔ عائشہ کو ضروری چیزیں میل کرتی وہ اب تیار ہونے چل دی تھی۔ وہ صبح سے لان میں کوئی 200 چکر کاٹ چکا تھا۔ الفاظ کو ترتیب دینے کی تگدو میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ پھر گہری سانس ہوا کے سپرد کرتا کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ پیروں میں سینڈل پہنے جب بستر سے اٹھی تو ایک آخری نظر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ سفید کرتا جس پر جگہ جگہ نیلے پھول بنے تھے، اس کے ساتھ سفید کیپری پہنے، ہم رنگ دوپٹے کو ایک طرف ڈالے، بال نفاست سے اسٹائلش چٹیاں میں باندھے، آگے کو دوسرے کاندھے پر ڈال رکھے تھے۔ میک اپ سے پاک چہرہ وہ ایک نظر دیکھتی اب باہر نکل آئی تھی۔ ہوا اس وقت آفس میں ہوا کرتی تھی اور زنیرہ بیگم کو ڈھونڈتی ہوئی وہ ان کے کمرے تک آئی تو وہ آرام کر رہی تھی۔ اس نے انہیں تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتی طے کی گئی جگہ کے لیے نکل گئی۔ دوسری جانب وہ بلیک شرٹ کے ساتھ گرے پینٹ پہنے، پیروں میں جاگرز ڈالے، ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ حاشر ابھی آفس ہی تھا۔ عائزہ بیگم اور امارہ بیٹھی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا، عائزہ بیگم کو پیچھے سے ہی حق کرتے ہوئے اس نے بولا تو وہ اس کا منہ چوم گئی۔ دھیان سے جانا، عائزہ بیگم نے نصیحت کی تو وہ ٹھیک ہے کہہ کر جانے لگا جب امارہ نے اسے انگوٹھا دکھا کر زیر لب بیسٹ آف لک کہا تھا، جس پر وہ مسکرا دی اور چابیاں اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ جب وہاں پہنچی تو ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ وہ کچھ دور ہی ایک بینچ پر بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ پارک کے اس حصے میں بچوں کا شور کم تھا اور فیملیز کچھ فاصلے پر گروپس کی صورت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر عارض بینچ پر بیٹھا دور کھیلتے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ماما نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو عارض کے دل نے رفتار پکڑی۔ وہ اٹھا اور مڑ کر اسے دیکھا جو اسی کی منتظر تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ عارض نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کہنے لگی، واک کرنا بہتر نہیں ہوگا کیا؟ اس کی بات پر وہ جگہ چھوڑتا ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ اکتوبر کا آغاز اور مدھم سروں میں چلتی ہوا ان کی دھڑکنوں کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ دونوں دھیمے قدم اٹھاتے سبز زار پر چلنے لگے تھے۔ حال احوال کے تبادلے کے بعد کچھ دیر معنی خیز سی خاموشی چھا گئی۔ پھر ماما نے گلا کھنکارا اور اسے مخاطب کیا، کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ ماما نے رک کر ایک امید کے ساتھ اس سے استفسار کیا تھا۔ سوال بے تکا تھا کیونکہ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، اس سے ملنے آیا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تو کیا وہ معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف کر چکا تھا؟ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ سوال یکدم تھا کہ امیمہ بری طرح چونکی تھی۔ وہ قدم روک کر اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے پر مزاح کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم سے معافی کا پوچھ رہی ہوں۔ امیمہ نے جیسے اسے ہوش دلانا چاہا تھا، لیکن محبت کے سمندر میں غرق ہوا انسان صرف ڈوبنا جانتا ہے، تیرنا نہیں۔ اور میں آپ سے ساری زندگی کے ساتھ کا پوچھ رہا ہوں۔ عارض نرم مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر کچھ لمحوں کے توقف کے بعد بولی، میری زندگی میں شادی کا لفظ نہیں ہے۔ امیمہ کی آواز بہت مدھم تھی۔ وہ چلتی ہوئی پاس موجود بینچ پر آ بیٹھی۔ عارض نے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر خود بھی بینچ کے دوسرے کونے پر جا بیٹھا۔ مدھم سروں میں ہوا چل رہی تھی۔ آپ کو میرے کردار پر بھروسہ ہے؟ عارض نے سر جھکائے ہوئے گھاس کو نظروں میں رکھے استفسار کیا تھا۔ ہاں، جواب بغیر کسی دیر کے آیا تھا۔ نہیں، اگر آپ کو میرے کردار پر بھروسہ ہوتا تو آپ انکار نہ کرتی۔ عارض کی بات پر وہ اپنی عنبر رنگ آنکھیں اس پر جما گئی۔ میں نے انکار تو نہیں کیا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے اقرار بھی تو نہیں کیا؟ عارض کی بات پر کچھ دیر فضا میں معنی خیز سی خاموشی چھائی رہی۔ دیکھیں امیمہ، ہم دونوں ایک دوسرے کو صرف اذیت دے رہے ہیں۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ کو اپنا محرم بنانے کا خواہش مند ہوں۔ آپ بھی کہیں نہ کہیں مجھ پر اعتبار کرتی ہے جو کہ آپ عام طور پر کسی مرد پر نہیں کرتی۔ امیمہ اس کی بات سے متفق تھی۔ وہ سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ آپ مجھ سے معافی مانگ رہی ہیں، لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ
उस वक्त में मुझ पर कुछ बातें आश्कार हुई है, कुछ एहसासात मोहब्बत किसे कहते हैं वो सब मालूम हुआ है। तो मुझे इस खूबसूरत जज्बे से रोशनास करवाने का शुक्रिया। आरिस ने कहते हुए घास से नजरें हटाई और उसकी अंबर रंग आंखों में देखा जो दम साधे उसे सुन रही थी। उसने कुछ देर उन आंखों में देखा था जहाँ कई जज्बात थे। लम्हे सरकने लगे और फिर वो नजरें फेर गया। उमैमा ने भी अपनी नज़रों का जाविया बदला था। आज रात तक इस बारे में सोच लीजिएगा, कल रिश्ता भेज दूंगा। हाँ कर देंगी तो किसी को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी, और इनकार कर देंगी तो खामोशी से आपकी ज़िंदगी से चला जाऊंगा। वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ था। फिज़ा में मानी खैर सी खामोशी थी। वो उसके किसी जवाब का मुंतज़िर था, लेकिन वो खामोश थी। और फिर वो भी उठ खड़ी हुई। मैं सोच कर बताऊंगी। आरिस ने मशकूर नज़रों से उसे देखा था और फिर वो दोनों एक साथ पार्क से निकल आए थे। लंबे सायादार दरख्त पीछे रह गए थे। उनकी बातें सुनते पौधे अब उन्हें दूर जाता देख रहे थे। वो घर आकर सीधा हवा के कमरे में गई थी, जो अभी ऑफिस से आई थी और अबाया उतार रही थी। नकाब खोलकर एक तरफ रखती, अब वो स्कार्फ की पिंस ढीली कर रही थी। हवा, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैंने हाथों को बाहर मसलते हुए कहा। वो बगैर दरवाज़ा नॉक किए अंदर आ चुकी थी और ऐसा सिर्फ वही कर सकती थी। हवा का कमरा हल्के रंगों का इम्तिजाज में सजा था, जिससे कमरे का माहौल और हर चीज़ हल्का हल्का और पुरसुकून होने का तासुर पेश कर रही थी, बिल्कुल हवा की ज़ात की तरह। ठंड रख बहन। हवा ने उस आफत की बुढ़िया को देखा था जो आज कंफ्यूज दिख रही थी। क्या हुआ, कोई ज़रूरी बात है? हवा की तफसार करने पर वो खामोशी से सर हिला गई। तुम चलो, मैं फ्रेश होकर कॉफ़ी के 2 मग लेकर आती हूँ। हवा के कहने पर वो गहरा सांस भरती अपने कमरे की तरफ चल दी। हवा का कमरा उमैमा के कमरे के ऐन सामने था। वो अपने कमरे में जाती फ्रेश हुई और हल्के फुल्के ट्राउज़र शर्ट में मलबूस बालकनी में आ खड़ी हुई। मगरिब के बाद अंधेरा फैल चुका था और अब फ़िज़ा में धीरे धीरे सुकून फैल रहा था। अक्टूबर के आगाज़ के साथ ही फ़िज़ा रात के वक्त सर्द होना शुरू हो गई थी, इसलिए वो मुकम्मल बाजुओं वाली शर्ट पहने हुए थी। वो हमेशा खुले खुले लिबास पहनने को तरजीह देती थी। कभी पैंट भी पहने तो कार को पैंट पहनती या फिर फ्लैपर। शॉर्ट्स भी उसके आम तौर पर उसके साइज़ से दुगनी ही होती थी। वो बालकनी पर मौजूद झूले पर बैठी खामोशी से आरिस के कहे अल्फाज के बारे में सोच रही थी कि उसके सामने उसका अक्स नुमाया हुआ, एक हेवला जो देखते ही देखते उसकी शक्ल अख्तियार कर गया। वो तुम्हें पसंद करता है उमैमा, तुम्हें ये बात मालूम थी शुरू से, तो तुम हैरान किस चीज़ पर हुई थी? उसके हेवले ने उससे सवाल पूछा था। उमैमा ने उस हेवले की अंबर रंग आंखें देखी थी। बाज़ औक़ात हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में मालूम होता है क्योंकि वो हमने खुद महसूस की होती है, लेकिन हम उनकी हकीकत नहीं मानते और झुटला देते हैं। फिर जब वो चीज़ें हकीकत में रोनुमा होती है तो इंसान की हैरत कुदरती फ़ैल होता है। उमैमा अपने अक्स को देखते हुए बोल रही थी, जो रैकिंग से टेक लगाए उसे सुन रहा था। तुम उससे मिलने लाहौर क्यों गई थी? तुम चाहती तो उसका यहाँ आने का इंतज़ार कर सकती थी। उसका हेवला उसे जवाब तलब था। मैं उस होटल में जाकर खुद से सारी हकीकत जानना चाहती थी। उसने उस हेवले को सफाई दी थी, जबकि वो दोनों ही जानते थे कि क्या सच है। उमैमा। हवा की आवाज़ पर माहौल में छाया सुकूत ख़त्म हुआ था। उसका हेवला गायब हो चुका था और उमैमा इस गहरी होती शाम में अकेली बैठी थी, जबकि हवा बालकनी का दरवाज़ा अबूर करती उसके हाथों में कॉफ़ी का मग थमाती उसके ऐन सामने रैकिंग के साथ जा खड़ी हुई थी, जहाँ कुछ लम्हे पहले उसका अक्स मौजूद था। क्या बात करनी थी तुमने? हवा की बात पर उसने अपने हाथों में थामे मग को देखा था, जिसमें उसकी पसंदीदा कॉफ़ी मौजूद थी, और फिर नज़रें उठाकर चांद को तलाश किया था, जो वहाँ मौजूद नहीं था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और चांद कहीं उनकी ओट में छुपा बैठा था। शायद पसंदीदा होना थका देने वाला काम था। मैं कुछ दिन पहले लाहौर गई, उमैमा ने बोलना शुरू किया तो हवा चौंकी। कब, क्यों, बताया भी नहीं? हवा की शिकवा किना नज़रों से देखने पर वो हंस दी। यार बात तो सुन लो, मैं तुम्हारे लाहौर के उस इश्क को लेकर बहुत तंग हूँ, कसम से। हवा ने उसे घूरा था, जिस पर वो मुस्कुरा दी। तसल्ली से मेरी बात सुनो और दरमियान में मत बोलना। उमैमा के कहने पर वो सर हिला गए। फिर उमैमा ने उसे लाहौर जाने से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। मतलब वो इस सब के बावजूद भी तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर चुका है? वाह उमैमा। हवा सब कुछ सुनकर पुरजोश से बोली थी, जिस पर उमैमा अपना सर पीट कर रह गई। उफ खुदाया। उमैमा रो देने को थी। वो उसे अपनी कन्फ्यूज़न बता रही थी और हवा मैडम प्रपोज़ल को लेकर पुरजोश हो रही थी। उमैमा मेरी बात सुनो, तुम आखिर किस चीज़ को लेकर परेशान हो? हवा की बात उमैमा ने उसे घूरा था। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ उससे? उमैमा ने बेतुकी सी बात बोली थी।
जैसे तुम शाहजेब से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। हवा की बात पर वो चुप हो गई। वो एक जज्बाती फैसला था। जज्बात का इस्तेमाल तुम्हें यहाँ करना चाहिए। तुम ये हकीकत तस्लीम कर लो कि तुम आरिस को पसंद करती हो। हवा ने दो टोक लहजे में कहा था, जिस पर वो चिढ़ गई थी। हवा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब तुम आरिस को पसंद नहीं करती? अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। उमैमा बेबस हुई थी। उसके जवाब पर हवा हंसती थी। अच्छा छोड़ो पसंदीदगी को, आरिस तुम्हारे लिए बाकी सबसे अलग है ना? हवा ने इस्तफसार किया तो उमैमा सोच में पड़ गई। उसे वो लम्हा याद आया जब उमैमा ने उस पर गन तानी थी और वो फिर भी उसे रात के अंधेरे में महफूज छोड़ कर गया था। उसे वो पल याद आया जब आरिस अमारा के साथ उनके घर आया था। फिर वो लम्हा भी आंखों के पर्दे पर लहराया जब वो उसे नीले गुलाबों के बारे में बता रहा था। उसके साथ ही वो लम्हा जब वो कसर सुल्तान में दाखिल हुई थी और वो वहाँ खड़ा उसी का इंतज़ार कर रहा था। फिर उसकी वो नज़रें याद आई जो न जाने क्या कुछ कहना चाहती थी। फिर वो पल जब उमैमा ने शायान के सामने उसे अपना मंगेतर कहा था और उसने उमैमा का भरपूर साथ दिया था। और आखिरी बार जब उमैमा ने उस पर एतबार नहीं किया था तो उसकी आंखों में रख्म व अज़ियत भी याद आई थी। फिर वो वक्त जब वो फूले तफस्सुर के साथ एयरपोर्ट पर आया था और उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा था, जैसे उनके दरमियान कभी कुछ बुरा हुआ ही ना हो। उसकी बादामी आंखों की वो चमक जो उमैमा को देखते ही उसकी आंखों में उतर आती थी, वो कैसे झुठला सकती थी? सही कहते हैं, चाहे जाने का एहसास बहुत खूबसूरत होता है। उमैमा, वो हवा की आवाज़ पर चौंकी थी। कहाँ खो गई? वो कुछ नहीं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हवा, मैंने कभी किसी मर्द से मोहब्बत, पसंदीदगी या चाहत की तौक़ा नहीं रखी, लेकिन अब ये एहसास दिल को भला लगने लगा है कि मैं किसी को पसंद हूँ। उमैमा ने मध्यम लहजे में कॉफ़ी के कप पर उंगली फेरते हुए सर झुकाए कहा था। हवा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। तुम आरिस से शादी कर लो। हवा ने उसे तमाम मसाइल का वाहिद हल बताया था। डरती हूँ कि हमारा रिश्ता बाबा और नूरे मामा के जैसा हुआ तो। उमैमा की नज़रें झुकी हुई थी। उसकी बात पर हवा का दिल डूब कर उभरा था। हवा, हम बहुत छोटे थे, तुम्हें याद नहीं होगी काफ़ी चीज़ें, लेकिन मुझे हर चीज़ याद है। उसके लहजे में नमी घुल गई थी। हवा चलती हुई उस तक आई थी और उसके ऐन सामने फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी। कॉफ़ी का मग साइड पर रखती उमैमा के हाथों से भी कॉफ़ी का मग ले चुकी थी। उसे भी नीचे ज़मीन पर रखती उमैमा के दोनों हाथ थाम गई थी। देखो उमैमा, नूरे मामा और बाबा के रिश्ते में बेशक बाबा गलत थे। मैं मानती हूँ उन्होंने हमें तवज्जो नहीं दी। मैं मानती हूँ उन्होंने नूरे मामा के साथ बहुत गलत किया, लेकिन हर मर्द एक सा तो नहीं होता ना। अब देखो, हमारे नाना भी तो एक मर्द थे। उन्होंने अपनी हयात में कभी नूरे मामा और नानू पर आँच नहीं आने दी थी, बल्कि अपने मरने के बाद भी वो इतना सब छोड़ कर गए हैं कि नानू सारी उम्र घर बैठे अच्छा खा पी सकती है। उन्होंने अपने मरने के बाद भी अपनी बीवी के ख्याल का सोच रखा था। साबित हुआ हर मर्द एक सा नहीं होता। इसलिए ये हकीकत तस्लीम करो, शादी तो हमें कभी ना कभी करनी होगी, तो क्यों ना एक ऐसी इंसान से कर ले जो हमें चाहता है और हमें हमारे ज़ख्मों और इन सिक्योरिटीज़ के साथ कबूल कर रहा है। हवा की बातें उसके दिल पर असर छोड़ रही थी। उसके दिल का एक कोना नरम पड़ा था और बस तभी उस दिल के कोने में आरिस की चाहत ने हल्की सी दस्तक दे दी थी। अगर तुम्हारा दिल आरिस के लिए मुतमईन है तो हाँ कर देना, हवा कहते हुए अपना मग उठा चुकी थी। लेकिन आरिस के बगैर जितना वक्त तुमने गुजारा है वो उदास ही गुजारा है। इसलिए ये तस्लीम कर लो कि वो हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया तो तुम्हारी ज़िंदगी वापस उसी मोड़ पर आ जाएगी जहाँ पहले हुआ करती थी। तुम्हारी ज़िंदगी में कई मर्द आएंगे, लेकिन उनमें से कोई आरिस सुल्तान नहीं होगा जो तुम्हें तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ के साथ कबूल कर सके। वो कहते हुए वहाँ से चली गई थी। वो जितना कर सकती थी वो कर चुकी थी, बाकी अब उमैमा का खुद का फैसला था। उमैमा का दिल हर तरह से आरिस के मामले में नरम पड़ चुका था। वो उसे उसकी तमाम खामियों समेत कबूल कर रहा था, तो क्या वो उसे उसकी चाहत समेत कबूल नहीं कर सकती थी? हकीकत ये है कि जिसे कभी मोहब्बतें ना मिली हो और एक वक्त में उसे मोहब्बत, तवज्जो और चाहत मिलना शुरू हो जाए तो उसे उन मोहब्बतों से भी डर लगने लगता है, क्योंकि वो मोहब्बत, वो चाहत और वो तवज्जो उसके मामूल के ख़िलाफ़ होती है और मामूल के ख़िलाफ़ चीज़ों को कबूल करने में वक्त दरकार होता है। वो घर जाकर फ्रेश हुआ था और रात के खाने पर जब सब मौजूद थे तो गला खंकार कर कहने लगा, माँ जी, मुझे ज़रूरी बात करनी है। आरिस के संजीदा लहजे पर बाकी तीनों नफूस भी चौंके थे। हाँ मेरा बेटा, बोलो, कायसा बेगम ने खाने से हाथ रोककर अपने छोटे सपूत को देखते हुए कहा था। उसने एक नज़र हाशिर और अमारा को देखा जो मुंतज़िर थे और हाशिर को अचानक याद आया था कि वो क्या बात करने वाला है।
آپ کو یاد ہے آپ نے نور خالہ کی بیٹی کے رشتے کی بات کی تھی مجھ سے؟ عارض نے کنفیوز ہوتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ اس کے انداز پر حاشر اور امارہ ہنس دیے تھے۔ بات کیوں گھما رہے ہو عارض، مدعے پر آؤ، حاشر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ البتہ عائزہ اس کے مزید بولنے کی منتظر تھی۔ میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، عارض نے مدھم لہجے میں کہا تو عائزہ پورے دل سے مسکرا دی، جبکہ حاشر کا کہا بے ساختہ تھا۔ ہوا کی بات کر رہے ہو نا عارض؟ امارہ نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھابھی، میں امیمہ سے نکاح کا خواہش مند ہوں، عارض نے جلے کٹے لہجے میں حاشر اور امارہ کو گھورتے ہوئے کہا تو امارہ اس کے کان کھینچ گئی۔ میں تو بہت خوش ہوں تمہارے فیصلے سے، عائزہ نے خوش ہوتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ لیکن ماں جی، میں کل ہی رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ اٹل تھا۔ مجھے پھوپھو سے بات تو کرنے دو، عائزہ نے اتنی جلدی مچانے پر اعتراض اٹھایا تھا۔ ان کو فون پر بتا دیجیے گا کہ ہم کیوں آ رہے ہیں اور ہر طرح کے جواب کے لیے تیار رہیے گا۔ عارض کی بات پر وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ سب تمہاری خواہش کے مطابق ہوگا میرا چاند، عائزہ نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اٹھ کر اس کا ماتھا بھی چوم دیا تھا۔ وہ اس کے فیصلے سے بہت خوش تھی کیونکہ انہیں امیمہ پسند تھی۔ اس چاند پر لگا گرہن بھی دیکھ لے، حاشر نے جلے کٹے لہجے میں کہا تو سب اس کے جلنے پر ہنس دیے۔ عائزہ بیگم جا کر زنیرہ بیگم کو کل آنے کی اطلاع دے چکی تھی اور آنے کا مقصد بھی بتا چکی تھی، جس پر زنیرہ بیگم نے وقت مانگا تھا، لیکن عائزہ نے کہہ دیا تھا کہ امیمہ کا کل جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا، جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے روز نور منزل میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ وہ رات کو کافی دیر سے سوئی تھی، جس کے عوض آج دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ سر کچھ بھاری ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے ہی کام کر رہی تھی۔ فریش ہوتی ہوئی بالکنی میں آ بیٹھی تھی اور تازہ ہوا میں سانس کھینچتی اپنا آئی پیڈ لیے وہ کام میں مشغول ہو رہی تھی۔ اکتوبر کے آغاز کے ساتھ ساتھ پاکستان میں شادی سیزن کا آغاز بھی ہوا چلا تھا۔ امیمہ جو کہ عروسی جوڑے ڈیزائن کرتی تھی تو اس کا کام بھی بڑھ چکا تھا۔ ہر ایک کی فرمائش ایک یونیک اور کامدار جوڑے کی ہوا کرتی تھی۔ شادی کا ایک ہی دن ہوتا ہے اور اس میں دلہنیں اپنے جوڑے کو خوبصورت سے خوبصورت دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسے میں امیمہ اور اس کی ٹیم کام میں کافی حد تک مصروف رہتے تھے۔ ابھی بھی اس نے 2 دن سے چھوڑا ہوا ڈیزائن مکمل کیا تھا۔ کچھ چیزیں اندر مزید ایڈ کرتی وہ اسے مکمل کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مکمل ہوا اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور خود کو سراہا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت ڈیزائن تھا۔ اس سب میں اسے 12 بج چکے تھے۔ وہ فارغ ہوتی ہوئی نہانے کی غرض سے واش روم جانے لگی کہ یوں ہی موبائل پر آئے میسج پر نظر پڑی۔ ہم کچھ دیر میں نکل رہے ہیں، آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ وہ چونکی تھی اور ہڑبڑا کر میسج کا ٹائم دیکھا جو آدھے گھنٹے پہلے کا تھا۔ اف عارض، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ واقعی آج ہی آ گئے تم تو؟ امیمہ کہتے ہوئے نیچے بھاگی تھی اور ہر طرف ہوتی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی زنیرہ بیگم کے پاس پہنچی تھی جو اپنی نگرانی میں کھانا تیار کروا رہی تھی۔ نانو، کون آ رہا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ زنیرہ بیگم اسے دیکھ کر چونکی تھی اور پھر مسکرا کر اسے ساتھ لیتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ امیمہ، عائزہ لوگ آ رہے ہیں عارض کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے۔ نانو کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تو وہ واقعی آج ہی آ رہا تھا؟ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ اف، وہ جھنجھلائی تھی۔ فیصلہ وہی ہوگا جو تمہارا ہے، لیکن میں دل سے اس رشتے پر راضی ہوں۔ عارض سے بہتر بہت ہوں گے لیکن میری نظر میں وہ تمہارے لیے بہترین ہے، باقی فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا۔ زنیرہ بیگم محبت سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیر گئی تھی اور پھر کوئی جواب نہ پا کر اٹھ کر کمرے سے جانے لگی تھی کہ امیمہ گویا ہوئی۔ مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نانو، بس میری خواہش ہے کہ رخصتی سادگی سے ہو۔ امیمہ کی بات پر وہ پلٹی تھی اور آنکھوں میں نمی لیے مسکرائی تھی۔ تم راضی ہو؟ زنیرہ بیگم کی نم آواز پر وہ مسکرائی تھی اور چلتی ہوئی ان تک آتی ان کی جھریوں زدہ ہاتھ تھام گئی تھی۔ جی نانو، میں پورے دل سے راضی ہوں۔ اس کی بات پر زنیرہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے گلے لگایا تھا۔ سدا خوش رہو اور اب جاؤ، جلدی سے اچھا سا تیار ہو جاؤ، نانو نے کہتے ہوئے اسے کمرے سے باہر بھیجا تھا تو مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں تیار ہونے چل دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہلکے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کو ادھ کھلا چھوڑے ہلکے سے میک اپ میں وہ تیار کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی مہمان آئے تھے۔ ہوا اسے آ کر اطلاع دے گئی تھی اور اسے نیچے آنے کا کہہ کر گئی تھی۔ وہ کنفیوز ہوتی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، پھر گہری سانس بھرتی باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے عارض پر پڑی تھی جو زنیرہ بیگم کی کسی بات پر دل کھول کر ہنس رہا تھا اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان سے کوئی بات کر رہا تھا۔
वो चलती हुई अंदर दाखिल हुई और फिर सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। आरिस पलक झपके बगैर उसे देख रहा था। उसके घूरने पर वो मुस्कुराता हुआ नजरें फेर गया था। काफ़ी देर बातों के बाद जब आयशा ने अपनी आने का मद्दुआ दोबारा पेश किया तो बाकी सबके साथ साथ हवा भी उसके जवाब की मुंतज़िर थी। हवा ने सवालिया नज़र से उसे इशारा किया था। हवा की नकाब में लिपटी आंखों में इनकार सुनने का अंदेशा था। सब उमैमा के जवाब के ही मुंतज़िर थे। उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, मुझे रिश्ता मंजूर है। उसने कहते हुए नज़रें आरिस पर जमाई थी और आरिस की आंखों में नाचते खुशी के जुगनू देखती हुए नज़रें फेर गई थी। सब ने मुबारकबाद का शोर बुलंद किया था जब वो दोबारा गोया हुई, लेकिन मैं रुखसती सादगी से चाहती हूँ। उसकी बात पर किसी को ख़ास एतराज़ ना हुआ था, लेकिन हाशिर ने अपना एतराज़ पेश किया था। मेरा इकलौता भाई है और है भी लाडला, तो मैं तो सब धूमधाम से करना चाहता हूँ। हाशिर की बात पर हवा ने जवाबन कहा था, आप वलीमा धूमधाम से कर लीजिएगा, वो बस रुखसती सादगी से चाहती है। हवा की बात पर उमैमा ने मशकूर कुन नज़रों से उसे देखा था। इससे पहले कि हाशिर दोबारा कुछ कहता आरिस गोया हुआ था, हमें मंजूर है, क्यों माँ जी? आरिस ने कहते हुए आयशा की राय मांगी थी, जिस पर वो कहने लगी, जैसा उमैमा चाहे। उनकी बात पर आरिस ने अमारा को नज़रों में कोई इशारा किया था तो अमारा समझते हुए हाशिर को लिए बाहर चली गई और उसे समझा बुझाकर वापस आ गई। ठीक है, हमें मंजूर है। हाशिर की बात पर सब मुस्कुरा दिए और फिर बातों ही बातों में शादी की तारीख तय हो गई, जो कि 1 नवंबर थी। शादी में 1 माह था, लेकिन लड़की वालों के लिए वो भी कम ही था। आयशा ने हर किस्म के जहेज से इनकार कर दिया था। उन्होंने अमारा की बात भी किसी किस्म का कोई जहेज कबूल नहीं किया था। अच्छे माहौल में खाना खाया गया और फिर कसर सुल्तान के मकीन अपने घर को लौट गए। उसके बाद उमैमा को सिर्फ एक मैसेज मौसूल हुआ था, मुझ पर एतबार करने का शुक्रिया, आपका एतबार आएगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। उमैमा ने मैसेज पढ़कर जवाबन इंशाअल्लाह कहा था और फिर दोनों शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे। उमैमा को किसी किस्म की फजूल रस्मात में दिलचस्पी नहीं थी। ना वो मेहंदी चाहती थी, ना ढोलक और ना ही संगीत। वो सादगी से निकाह के हक़ में थी। उसने अपना उरूसी जोड़ा भी खुद डिज़ाइन किया था और उसे सादगी के साथ साथ खूबसूरत भी बनाया था। उसके कोई ऐसे ख़ास रिश्तेदार नहीं थे, अगर थे भी तो उमैमा उन्हें बुलाने के बिल्कुल हक़ में नहीं थी। उसका कहना था कि जो बुरे वक्त में साथ ना निभा सका, उनके साथ की अच्छे वक्त में भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तैयारियों के साथ साथ कोशिश करती थी कि हवा और ज़नीरा बेगम के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सके और इसीलिए वो रोज़ शाम को तीनों लॉन में बैठकर घंटों बातें किया करते थे। दूसरी जानिब आरिस, बुरहान और हाशिर मुकम्मल तौर पर अमारा और आयशा के हाथ आ चुके थे। रोज़ बरोज़ बाज़ारों में और मार्केटों के चक्कर लगाकर वो कमला गए थे। आयशा अपनी बहू जैसी बेटी के लिए बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर रही थी, जबकि अमारा इस सब में उनका भरपूर साथ दे रही थी। उसके अलावा आरिस और बुरहान मुसलसल उसके साथ तैयारियों में मसरूफ़ थे और हाशिर ऑफिस का बहाना लगाकर कम कम ही उनके हाथ आता था। अभी भी वो तीनों नूर मंजिल के लॉन में शाले कंधों पर ओढ़े हुए बैठी बातों में मसरूफ़ थी कि ज़नीरा बेगम ने कहा था, उमैमा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी तुम? उमैमा ने काफ़ी कम टेबल पर रखकर उनके हाथ थामे थे और अपने लबों से लगाए थे। नानू, आप हुक्म किया करें। मैं चाहती हूँ तुम्हारे निकाह के गवाहों में तुम्हारा बाप भी शामिल हो। उमैमा की उनके हाथों पर गिरफ्त कमज़ोर हुई थी। हवा भी एक लम्हे को खामोश हुई थी। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर दो, ज़नीरा बेगम ने उसके हाथों पर दबाव डालते हुए कहा था। ठीक है, लेकिन वो मेरे निकाह के बाद यहाँ से चले जाएंगे, ओके? उसने नरमी से उनके हाथों की पुश्त चूमते हुए कहा तो ज़नीरा बेगम ने उसे मोहब्बत से लगा लिया। मुझे क्यों इग्नोर कर देती हो आप नानू? हवा उठकर उन दोनों के गले लगते हुए बोली थी, जिस पर वो दोनों हंसती थी। तैयारियों में वक्त तेज़ी से गुजरने लगा था। 4 दिन बाद जुम्मा के रोज़ उनका निकाह था और उमैमा बुरी तरह काम में फंसी हुई थी। आयशा अंदर आई थी और उसके सामने कॉफ़ी रखते हुए बोली, उमैमा आपी, आपको इस वक्त घर होना चाहिए। सब मैं और टीम मिलकर संभाल सकते हैं। आप बस ज़रूरी काम निपटाएं और घर वालों के साथ वक्त गुजारें। आयशा ने उसे समझाया तो वो सर हिला गई। ठीक कह रही हो, लेकिन काम इतना है और मुझे ये भी मालूम नहीं है कि मैं ऑफिस कब आ पाऊँगी, तो कैसे होगा सब कुछ? उमैमा झंझलाते हुए बोली थी। सब कुछ हो जाएगा, रिलैक्स करें। आप बस ये डिज़ाइन कंप्लीट कर दें और फाइल्स पर साइन कर दें और अपना ब्राइडल ड्रेस ट्राई कर लें। आयशा की बात पर सर झटक कर काम में मसरूफ़ हो गई और जल्दी से सारा काम निपटाती अपना उरूसी जोड़ा मंगवाती चेंजिंग रूम में चली गई। जोड़ा पहन कर देखती, सब डन करती वो ऑफिस से निकलने के लिए उठी थी। आयशा, स्टाफ को कह दो कल का लंच मेरी तरफ से है, लोकेशन भेज दूंगी तो टाइम से पहुंच जाए सब।
उमैमा की बात पर आयशा खुले दिल से मुस्कुराई थी। आप मेरे साथ चलकर खुद क्यों नहीं कह देती? कसम से सब बहुत दुआएं मिलेंगी। आयशा की बात पर वो हंसती हुई सर हिलाकर उसके साथ ही बाहर आकर सारे स्टाफ को बता गई, जिस पर सबने भरपूर खुशी का इजहार किया। ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं? उमैमा ने वापस अपने कैबिन में आते हुए आयशा से पूछा तो दांतों की नुमाइश कर गई। असल में हम सब ने शर्त लगाई थी कि बॉस हमें अपने निकाह की खुशी में ट्रीट देंगी तो उनसे 2 दिन की छुट्टी मांगेंगे, और अगर बॉस ट्रीट नहीं देती तो उनसे ट्रीट मांग लेंगे, लेकिन फिर छुट्टी कैंसिल समझना होगी। आयशा ने आंखें मटक मटक कर मासूमियत से बात की तो उसके अंदाज और उसकी बात पर दिल खोल कर हंस दी। तौबा है तौबा भाई, इतना काम है और तुम लोगों को छुट्टी चाहिए? उमैमा ने ज़रा रौबदार से लहजे में कहा तो आयशा का मुंह लटक गया। मान जाए ना बॉस, बस 2 छुट्टियां दे दे, जुम्मा और हफ्ता की। आयशा ने उसे मासूमियत से देखते हुए कहा तो उमैमा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। 2 छुट्टियां, ये और फिर अगले इतवार को छुट्टी, इकट्ठी 3 छुट्टियां, उमैमा ने जैसे बावर करवाते लहजे में कहा था। अम्मी काफ़ी अरसे से आबाई गांव जाने का कह रही है और काम के बोझ के अवज़ जा ही नहीं पा रही। अब काम का बोझ हल्का हुआ है तो सोचा इन 3 छुट्टियों में अम्मी को लेकर चली जाऊंगी। आयशा की बात पर वो मुस्कुरा दी थी। इसका मतलब तुम मेरे निकाह पर नहीं आओगी? उमैमा ने उसे घूरते हुए कहा था, जिस पर दांतों की नुमाइश कर गई थी। आपने ही तो कहा था कि माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। आयशा की बात पर वो आसुदगी से मुस्कुरा दी थी। हाँ, माँ से बढ़कर वाकई कुछ नहीं होता। उसकी आंखों में नूरे का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया था। खैर, तुम लोग छुट्टियां एंजॉय करना और कल लंच पर मुलाकात होती है। उमैमा कहते हुए सरबराही कुर्सी से उठकर अपनी जैकेट उठाती निकलने के लिए तैयार थी, जबकि आयशा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मतलब हमारी छुट्टियां कंफर्म? आयशा की बात पर उसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए गॉगल्स चढ़ाती ऑफिस से बाहर निकल आई। पीछे सब छुट्टियों की नवीज़ सुनकर खुशी से पागल होने को थे। इतने काम के बाद इतनी छुट्टियां मांगना तो उनका हक बनता था। उमैमा गाड़ी में बैठती आंखों से चश्मे उतारे, आंखों में उतरी नमी साफ कर गई। स्टीयरिंग पर सर टिकाए वो रो देने को थी। उसको शिद्दत से नूरे की कमी महसूस हुई थी। इससे पहले कि वो रोने का शगल फरमाती, किसी ने उसकी गाड़ी का शीशा बजाया। उमैमा ने सर उठाकर देखा तो वो बाहर खड़ा था। आरिस को वहां देखती वो चौंकी थी। उसने फौरन से आंखें पोंछी थी और खुद को कंपोज करती शीशा नीचे कर गई। ये उस दिन के बाद उनकी पहली मुलाकात थी। तुम यहाँ, खैरियत? आरिस ने उसकी आवाज़ में घुली नमी महसूस कर ली थी, लेकिन उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए कुछ न बोला। माँ जी की कॉल नहीं आई आपको? आरिस कंफ्यूज होता हुआ शीशे पर झुके पूछ रहा था। नहीं, शायद भूल गई है, आरिस कहते हुए गाड़ी से पीछे हटा और बालों में हाथ फेरता उसकी गाड़ी को गुजरने का रास्ता दे गया। तभी उमैमा के मोबाइल पर कॉल आई थी। नानू का नाम देखती वो कॉल उठा गई थी। उमैमा, आरिस कुछ देर में तुम्हारे पास आ रहा है तो उसके साथ जाकर अपने वलीमे का जोड़ा ले आओ। इससे पहले कि उमैमा एहतजाज करती, ज़नीरा बेगम फ़ोन काट चुकी थी। उमैमा ने बेबसी से फ़ोन को देखा था और फिर बाहर खड़े आरिस को, जो उसी का मुंतज़िर था। वो दूसरी सीट से अपनी जैकेट पकड़ती बाहर निकली थी। मैं आयशा को गाड़ी की चाबियां दे आऊँ, फिर चलते हैं। आरिस ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उमैमा सर झटकती आयशा को गाड़ी घर पहुंचाने का कहती उसके साथ चलती थी। कुछ देर बाद वो दोनों मॉल में घूम फिर कर वलीमे का जोड़ा पसंद कर रहे थे। काफ़ी देर की मुशक्क़त के बाद उमैमा को जोड़ा पसंद आया था। चूँकि वो खुद डिज़ाइनर थी तो वो हर चीज़ को देख परख रही थी। उन्होंने पहले आगाह किया होता तो वलीमे का जोड़ा भी वो खुद ही बना लेती। उसके बाद आरिस उसे लिए जूतों वाले पोर्शन में आ गया और जोड़े के साथ मैचिंग जूता लेने के बाद अब वो ज्वेलरी पर सर खपा रहे थे। उसका नेकलेस अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके झुमके बहुत हैवी है। इस ड्रेस के साथ झुमके इतने हैवी सूट नहीं करेंगे। उमैमा ने नेकलेस और झुमके उसके सामने करते हुए कहा था। तो आप कोई और पसंद कर ले, आरिस ने खुले दिल से ऑफर करवाई थी। बाकी सबके साथ नेकलेस हैवी है, उमैमा ने मुंह बसोरे कहा था। उमैमा, आपको एग्जैक्टली चाहिए कैसा? आरिस के सवाल पर वो उसे समझाने लगी। बिल्कुल बारीक सा नेकलेस, उसके साथ हल्के फुल्के से बूंदे, और ये बिंदिया वगैरह नहीं पसंद मुझे। हारिस ने उसकी बात सुनी थी और गोया हुआ। आपके जोड़े के दामन पर काम ज़्यादा है और गले पर हल्का फुल्का है, तो आप नेकलेस थोड़ा सा हैवी कर ले। उमैमा ने उसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाया था। पहले ही जोड़ा बहुत ज़्यादा हैवी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कैरी कैसे करूँगी, उमैमा ने परेशानी से कहा था, जिस पर वो हंस दिया। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमने जिस रंग का आपका जोड़ा लिया है उस रंग का मेरा कोट मुझ पर कैसे लगेगा। उमैमा
اس کی بات پر چوکی تھی۔ تم اسکائی بلو پینٹ کوٹ پہنو گے؟ جی، پینٹ کوٹ نکاح پر پہن لینا، ولیمے پر سفید شلوار قمیض کے ساتھ اسکائی بلو واس کوٹ پہن لینا۔ امیمہ کی بات پر اس نے اسے گھورا تھا۔ نکاح جمعہ کی نماز کے بعد ہوگا تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے جمعہ کی نماز پینٹ کوٹ میں ادا کرنے کا۔ اس کی بات پر امیمہ ہنس دی اور وہ اس کی ہنسی میں کہیں کھو گیا تھا۔ شاید پہلی بار اس نے اسے یوں کھل کر ہنستے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی سیاہ کارگو پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ گلے میں ایک سفید رنگ کا لاکٹ جگمگا رہا تھا جس پر 2 دل وقفے سے بنے تھے۔ وہ لاکٹ کبھی گلے میں پہنا اسکارف کی وجہ سے ڈھک جاتا تو کبھی واضح ہو جاتا۔ مال میں گہما گہمی تھی جس کی وجہ سے اسے سردی محسوس نہ ہوئی تو اس نے جیکٹ بازو پر ڈال رکھی تھی، لیکن عارض نے اس کے ہاتھ سے وہ جیکٹ تھام لی تھی جس پر وہ کچھ بول بھی نہ پائی تھی۔ وہ بالوں کو فرنچ بریڈ میں باندھے ہوئے تھی۔ امیمہ نے اسے خود میں کھوئے پایا تو اس کا کاندھا ہلایا تھا۔ وہ جیولری کے ڈبے سامنے رکھے جیولر کی شاپ پر بیٹھے تھے۔ امیمہ کے ہلانے پر وہ چونکا تھا اور ہوش میں واپس لوٹا تھا۔ ہم چلتے ہیں، آپ کو جیسی جیولری چاہیے وہ آپ انہیں بتا دیں، یہ آرڈر پر بنا دیں گے، میں پھر لے جاؤں گا آ کر۔ عارض کے کہنے پر وہ مسکرا دی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لگتا ہے مجھے نیکلس ہیوی کر لینا چاہیے تو یہ والا ڈن کر دیتے ہیں۔ امیمہ نے کہتے ہوئے عارض کے جانب پڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آر یو شیور؟ عارض نے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، عارض نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تو امیمہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، پھر تم گھر جا کر کھانا کھا لینا۔ امیمہ کی بات پر سر پیٹ کر رہ گیا تھا، لیکن چاہا نہ چاہا گاڑی میں بیٹھتا، اسے گھر چھوڑتا وہ واپس کا سر سلطان آ گیا تھا۔ بس 4 دن ہی تو تھے، کوئی فریاد تیرے دل میں دبی ہو جیسے، تو نے آنکھوں سے کوئی بات کہی ہو جیسے، جاگتے جاگتے ایک عمر کٹی ہو جیسے، جان باقی ہے مگر سانس رکی ہو جیسے، ہر ملاقات پہ محسوس یہی ہوتا ہے مجھ سے کچھ تیری نظر پوچھ رہی ہو جیسے، راہ چلتے ہوئے اکثر یہ گما ہوتا ہے وہ نظر چھپ کے مجھے دیکھ رہی ہو جیسے، اس طرح پہرو تجھے سوچتا رہتا ہوں میں، میری ہر سانس تیرے نام لکھی ہو جیسے، ایک لمحے میں سمٹ آیا ہے صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔